Hey guys, we're moving on to our next topic, organic chemistry. Physical chemistry हमारी हो चुकी है खत्म. Organic chemistry बहुत important है neat point of view से. So let's quickly take a recap of classification and nomenclature. तो जब भी हम लोग classification करते हैं organic compounds की, तो हम उन्हें classify करते हैं as into two, right? So एक हमारे पास हो गए acyclic और open chain. Acyclic or open chain compounds, and they are also known as aliphatic compounds or aliphatic compounds. फिर उसके बाद हमारे पास है closed or cyclic compounds. Right? Now acyclic को या aliphatic compounds को हम लोग further classify करते हैं into two. The first one, which is known as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are alkanes, and the unsaturated hydrocarbons are of two types. One is alkenes with carbon carbon double bond, and one is alkynes with carbon carbon triple bond. Okay, the closed or cyclic, they are classified into two. One is homocyclic. So homocyclic means that they have the same atoms in the cycle. Homo means same, right? So homocyclic. These are also known as carbocyclic compounds or carbocyclic. And the other one, that is heterocyclic, which means that they are going to have different elements in the ring. The homocyclic, they are classified into two. So when we are talking of homocyclic, the homocyclics are classified into two. One is alicyclic and the other one is aromatic. Alicyclic may be cycloalkanes. So these are cycloalkanes. They may be cycloalkenes. They may be cycloalkynes. Whereas when we're talking of aromatic, aromatic दो तरह के होते हैं. One is benzenoid, which have the benzene ring, and the other one is non-benzenoid, which do not have the benzene ring. ठीक है. और जब हम लोग हीट्रोसाइक्लिक करते हैं तो हीट्रोसाइक्लिक को भी हम इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं इनटू टू. सो हीट्रोसाइक्लिक में बी एलिसाइक्लिक एंड दे मे बी एरोमेटिक. तो ये एक कंप्लीट आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ देम सो दैट वी अंडरस्टैंड. जब हम लोग एसाइक्लिक लेते हैं, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स दे आर लिंक्ड टू वन अनदर. सो बेसिकली दीज आर गोइंग टू फॉर्म ओपन चेन्स. एसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? ओपन चेन्स. अब ये ओपन चेन्स जो है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या ये ओपन चेन्स जो है ये ब्रांच्ड भी हो सकती है. ओके, so that is why they are known as acyclic or they are known as open chain. Examples which we can take over here is CH3, CH2, CH2, CH3, which is butane,
or we can take a branched one, CH3, C, CH3, CH3, and then we have CH and CH2 and CH3, right? So अब इसको अगर आप नेम करो तो then this is going to be what? 2,2-dimethyl butane. 2,2, there's going to be a hyphen over here, dimethyl butane. Acyclic जो है ये एल्कीन्स भी हो सकते हैं, एल्केन्स भी हो सकते हैं और एल्काइंस भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं CH3, CH2, CH double bond CH2, so this is butene. So this is another example of acyclic compounds. Whereas when we are talking of cyclic compounds वो है जिसके पास at least एक ring है. So it will have a cycle, right? So it has at least one ring, or it can have a closed chain. These are of two types. The first one is homocyclic. Homocyclic का मतलब हुआ that they're going to be same carbon atoms. Like for example, we have cyclopropane, we have cyclobutane, we have cyclohexane. तो इसमें एक ही तरह के atoms है ring में, which is carbon, right? और second जो हमारे पास homocyclic में आते हैं, so these are known as what? These are known as, the first one is alicyclic. Then the next one which we have over here is aromatic compounds. So alicyclic में ये examples आपके पास आ गए और second जो है they are aromatic. Aromatic में again there is going to be a cycle, but generally हम लोग बोलते हैं कि it has a benzene ring. So examples which we can take over here is benzene, naphthalene and so on. ठीक है? तो इस तरह से aromatic में there has to be a you can say a benzene ring over here. Okay? फिर अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट में चले, जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो जिसके पास बेंजीन रिंग होती है उनको हम लोग बेंजीनॉइड कंपाउंड्स बुलाते हैं. व्हाट आर हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? सो जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें अगर एलिसाइक्लिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, सो एलिसाइक्लिक का मतलब देयर इज नो बेंजीन रिंग विच इज प्रेजेंट or they are not aromatic. So alicyclic में we can take ethylene or epoxide. ऑक्सीरेन भी इसको हम बुलाते हैं, इपॉक्सीथेन भी बुलाते हैं. So this is alicyclic. Or if you're taking tetrahydrofuran, so this is THF, tetrahydrofuran. Or you have 1,4-dioxane. So all of these are examples of alicyclic. Then we have aromatic heterocyclic compounds. तो aromatic में हमारे पास we can take a few examples over here. Aromatic में हमारे पास आ जाता है जैसे for example we have furan. इस पे बेंजीन रिंग आप देख रहे हो नहीं है, but still it is aromatic because ये हकल रूल को obey करता है. So this is furan. Or we have pyrrole. पायरोल के पास एक नाइट्रोजन है in the ring. So this is pyrrole. ठीक है? या हमारे पास है pyridine.
So this is pyridine. ठीक है? Then what are the type of carbon atoms which may be present in organic compounds? This is very very important. तो अगर हम लोग लेते हैं 1 डिग्री कार्बन, या it is also known as प्राइमरी कार्बन. 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या हुआ? इट इज अ कार्बन दैट इज अटैच्ड टू वन और नन अदर कार्बन एटम. अटैच्ड टू वन और नन अदर कार्बन एटम. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे CH3, CH2, CH3. सो यहाँ पे दिस इज अ प्राइमरी कार्बन एटम. ठीक है? जैसे अगर आप ये वाला ले रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिग्री कार्बन एटम. ओके. फिर सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन. तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? इट इज अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स. अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स. ओके. जैसे ऊपर वाला अगर हम लोग लेते हैं फिर से एग्जाम्पल, तो ये वाला जो है दिस इज अ 2 डिग्री, क्योंकि ये एक और दो दो के साथ अटैच्ड है. दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एटम. ओके. फिर उसके बाद 3 डिग्री और टर्शनरी कार्बन एटम. और टर्शरी कार्बन एटम 2 डिग्री और टर्शरी कार्बन एटम, इट इज अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. Attached to 3 other कार्बन एटम्स. ठीक है? सो आई टेक एन एग्जांपल जिसमें हम लोग तीनों तरह का जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे. फिर देन वी हैव द क्वाटरनरी कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम. Quaternary carbon atom, or it is also known as 4 डिग्री carbon atom. ठीक है? Now this carbon atom that is attached to 4 other carbon atoms. Attached to 4 other कार्बन एटम्स. ठीक है? तो अगर हम एक कंपाउंड ले विच इज CH3, CH3, then we have CH3, then we have CH2 and CH3. ठीक है? अब इसमें हमें हर एक कार्बन को आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हमें यहाँ पे हर एक कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन एटम बिकॉज इट इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स. ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स. ये आपके पास आ गया 2 डिग्री कार्बन एटम. ठीक है? और ये जो टर्मिनल कार्बन एटम्स है, दीज आर 1 डिग्री कार्बन एटम्स. सो प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज जब आप हेलो अल्केन्स वगैरह सब में करते हो, तो जो रिएक्टिविटीज हैं वो डिपेंड करेगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के ऊपर. राइट? तो अगर हम लोग कंपाउंड्स लेते हैं, तो प्रोपेन जो है वो फर्स्ट मेंबर है जिसके पास 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. सो अगर हम लोग ले रहे हैं CH3, CH2 एंड CH3, so this is going to be 1 degree, this is 1 degree and this is 2 degree. तो प्रोपेन ही है. इथेन में भी एक तरह का होएगा, मीथेन तो चलो छोड़ ही दो. प्रोपेन इज द ओनली द फर्स्ट इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स which is going to have 2 types of carbon atoms. होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज वो है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है सेम,
फंक्शनल ग्रुप इज सेम, और जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं दे डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। तो जितने भी मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनको हम लोग सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम हो सकती है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम हो सकती है, राइट? तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी द होमोलोगस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी एल्केन्स हैं, they all belong to the homologous series. So the first alkane is methane, next आ गया C2H6, थर्ड आ गया C3H7। तो इस पे और इस पे कितना फर्क है CH2 का, इसमें और इसमें कितना फर्क है CH2 का। अंडरस्टूड? चाहे वो अल्कोहल्स है, चाहे जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर जिसका सेम है, बट दो कंसेक्टिव मेंबर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय व्हाट, बाय अ CH2 group, that is known as the homologous series. Right, guys? So, then we are going to start nomenclature in our next class. Till that time, keep revising.